Hello student, welcome to my YouTube channel. I am Tarun Sharma. In this video, I will explain the test of chapter 11, Microsoft PowerPoint in class 9. Okay? And I hope आप सब अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। इससे पहले मैंने 10 चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं। आप मेरी प्लेलिस्ट सेलेक्ट करके YouTube चैनल में क्लास 9 कंप्यूटर एप्लीकेशन उसमें ऑल चैप्टर्स को देख सकते हो। ओके, let's start. In this chapter, we will learn about presentation software, features and applications of Microsoft PowerPoint, exploring Microsoft PowerPoint, component of a Microsoft PowerPoint window, different view of slide, working with Microsoft PowerPoint, like creating, saving and slide layout and others, formatting, inserting header and footer, inserting pictures, grouping and ungrouping, inserting table, the slide master, adding watermark, adding audio, video, animation effect, and creating and viewing slideshow and printing up presentations. An essay first is introduction. Visualize the situation where you are required to appear in front of one or more people for the sake of explaining, training, or conveying information of ideas. ओके, डिजिटली आप अपनी इंफॉर्मेशन किसी को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, ओके, विद द हेल्प ऑफ डिजिटल डिवाइस एंड सॉफ्टवेयर्स. Simply we know that what is the presentation. Presentation is a way of displaying the informations by way of text, animations, voice and notes. सिंपली हम क्या कह सकते हैं, प्रेजेंटेशन क्या है, एक तरीके जिसे हम अपनी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले कर रहे हैं. उसमें टेक्स्ट हो सकता है, एनिमेशन हो सकते हैं, आइडियाज़ भी हो सकते हैं हमारे, जो भी हम अपना आइडियाज़ उसमें क्रिएट करना चाह रहे हैं, नोट्स भी हमारे हो सकते हैं. इट इज़ अ प्रेजेंटेशन. ओके, एंड प्रेजेंटेशन इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड पेजेस दैट कैन बी सीन ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन. क्लियर है? ओके, क्लियर. An essay is presentation software. This software is used for creating a presentation. हम प्रेजेंटेशन हमें क्रिएट करनी है तो हम कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं? लाइक माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट. तो माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट is a software that is used to create a presentation. In your book, a business software that enable us to create concise, stylish and clear image for presentations and report are called a presentation graphics. Such software include charts and graph along with impressive text format to create visual, appealing and brilliant presentations. Such software are also called business graphics as they even allow importing graph and data from spreadsheet like Excel. ओके, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर. प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में सिंपली आप कह सकते हो, जो प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन टू अलाउ पीपल टू मेक स्लाइड शो एंड रिपोर्ट्स. ओके, जो कि डिज़ाइन किए जाते हैं यहाँ पे पीपल्स यूज़र अपनी प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सके और एक अपनी रिपोर्ट्स तैयार कर सके और उसे किसी के अपने पर्सनस के आगे, या जैसे टीचर्स ने क्रिएट किया तो वो स्टूडेंट्स के सामने उसे रिप्रेजेंट कर सके. ओके,
Simply a business software that enable us to create stylish and clear image for presentation and report are called as presentation graphics. जो report होगी वो presentation graphics होगी. Next is creating an effective presentation. If you want to create an effective presentation, then some of points is needed. First is know your subject matter. And second, know your audience. Third, develop a theme and prepare your script. And fourth, visual aids. And fifth, selecting of font and color, selecting of appropriate graphics, balancing information, printed handout and exercises. These are the some point for create an effective presentation. Presentation आपके किस टॉपिक के ऊपर लिखी जा रही है उसके बारे में आपको उसके सब्जेक्ट को पता होना चाहिए और उसमें जैसे कि किसके सामने वो हमें उसे रिप्रेजेंट करना है. जैसे बच्चों के सामने रिप्रेजेंट करना है तो उसमें थोड़े हमारे पिक्चर्स, ग्राफिक्स, एनिमेशंस इनका यूज़ होना चाहिए. एक अच्छी लैंग्वेज होनी चाहिए. ओके. और उसमें जो फॉन्ट कलर एंड स्टाइल जो टेस्ट है उसका कलर, उसके थीम कलर्स वो अकॉर्डिंग टू प्रेजेंटेशन जो कि जो हमारा सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए. ओके. तो ये कुछ पॉइंट्स हैं. नेक्स्ट इज फीचर्स एंड एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट. तो फर्स्ट इज व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट. Microsoft PowerPoint is a presentation software that not just enable you to create presentations but also help you enrich them with animations and effect. And it provides some features that allow you to add elements such as text, pictures and word art, apply formatting style on text, make presentation visual appealing. These are the some features of MS PowerPoint. Okay. इसके फीचर्स हैं. हम इसमें पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं, एनिमेशन ऐड कर सकते हैं, टेक्स्ट को स्टाइलिश चेंज कर सकते हैं, वर्ड आर्ट का यूज़ कर सकते हैं. ओके. तो दिस इज द फीचर्स ऑफ MS PowerPoint. Next is exploring Microsoft PowerPoint. How can start Microsoft PowerPoint? Since you are already familiar with Microsoft, we will go ahead with on our next destination Microsoft PowerPoint. Simply हमें Microsoft PowerPoint स्टार्ट करना है तो we follow this step. Click start button, select all program, then select Microsoft Office and click Microsoft PowerPoint 2010. ओके. जैसे आपने यहाँ से स्टार्ट बटन को सेलेक्ट किया, देन Microsoft Office को यहाँ से आप PowerPoint को सेलेक्ट करेंगे और आपका Microsoft PowerPoint ओपन हो जाएगा. And next is exiting Microsoft PowerPoint. How can close the Microsoft PowerPoint applications? First of all, click the File tab button, and second, click on the Exit option and select the Exit option and press Alt F4 की या आप Alt F4 की का यूज़ करके आप उसे क्लोज कर सकते हैं. क्लियर. Next is component of Microsoft PowerPoint window. There are different types of component: quick access toolbar, tabs, title bar, ribbon, placeholder, slide, view button, status bar, ruler, file tab. These are the some components of PowerPoint window. Okay, clear है. ये आपकी स्लाइड है. स्लाइड 1, 2, 3 जितनी भी आप स्लाइड बनाएंगे वो आपके यहाँ पर रिप्रेजेंट होगी. ये टेक्स्ट एरिया है जहाँ पर आपको कुछ भी राइट करना है आप राइट कर सकते हैं. देखिए टाइटल के बारे में आपको पता ही है.
जो MS वर्ड में आप टैब पढ़े थे, रिबन टाइटल सेम होता है। द टाइटल बार इज लोकेटेड एट द वेरी टॉप ऑफ द स्क्रीन और द प्रेजेंटेशन विंडो। टॉप में जो सबसे होता है वो टाइटल बार होता है। रिबन इज रिप्लेस द ट्रेडिशनल मेनू एंड टूल बार्स। ओके, ये रिप्लेस करता है। फर्स्ट इज होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, ट्रांजेक्शन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू एंड व्यू। एंड नेक्स्ट इज क्लिप आर्ट, स्लाइड, फॉन्ट, पैराग्राफ, ड्राइंग एंड एडिटिंग। दिस इज द वेरियस ग्रुप ऑन होम टैब। ये होम टैब पे जैसे आप क्लिक करेंगे सारे ओपन हो जाएंगे। नेक्स्ट इज क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार प्रोवाइड शॉर्टकट टू द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज कमांड्स। This toolbar is located on the left of the title bar. You can easily customize the quick access toolbar by clicking arrow on the right side of this toolbar. ये आपका क्या होता है, जो लेफ्ट ऑफ द विंडो, जैसे कि आपके लेफ्ट में जो टाइटल होता है, टाइटल के लेफ्ट में ही होता है, वहाँ पर क्विक एक्सेस टूलबार हमारा इससे होता है। इस टाइप से इसके सिंबल्स होते हैं। रीडो, अंडो, जो भी हम कमांड हमें यहाँ पे मेंशन करते हैं वो इजीली एक्सेस हो जाती है। नेक्स्ट इज फाइल टैब। इट इज़ अ रेड टैब लोकेटेड एट द अपर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट। सिंपली क्या है, फाइल टैब में आपको जैसे ही हम फाइल टैब पे क्लिक करते हैं तो ये ऑप्शन हमारे ओपन हो जाते हैं, जैसे सेव एज, सेव द करेंट प्रेजेंटेशन, सेव द करेंट प्रेजेंटेशन अंडर ए न्यू नेम। जैसे आपने पहले से कोई सेव कर रखे प्रेजेंटेशन, उसे दूसरे नेम से सेव कर सकते हैं। ओपन, हम फाइल ओपन कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज क्लोज इज ऑलरेडी ओपन प्रेजेंटेशन। ये क्या करता है, जो हमारी फाइल जो ओपन हो रही है, प्रेजेंटेशन जो पहले से ही ओपन है उसे हम क्लोज कर देंगे। एंड न्यू ऑप्शन इज यूज फॉर क्रिएट ए न्यू प्रेजेंटेशन। जैसे कि हमें एक और न्यू प्रेजेंटेशन अलग से क्रिएट करनी है तो सेलेक्ट द फाइल टैब, देन क्लिक द न्यू ऑप्शन। एंड इफ यू वांट टू प्रिंट द ऑल स्लाइड्स, जो भी आपने स्लाइड या प्रेजेंटेशन क्रिएट किया उसको आपको प्रिंट करना है तो सेलेक्ट द फाइल टैब, देन क्लिक द प्रिंट ऑप्शन, देन प्रिंट द प्रेजेंटेशन। ओके, सिंपली दीज आर द सम ऑप्शंस अवेलेबल इन फाइल टैब। एंड व्यू बटन गिव द नॉर्मल व्यू, स्लाइड sorter व्यू, रीडिंग व्यू एंड द शो व्यू फॉर क्विक एक्सेस। व्यू बटन से आप जैसे जो हमारी स्लाइड्स हैं उन्हें हमें नॉर्मल व्यू में देखना है तो वहाँ नॉर्मल में देख सकते हैं, स्लाइड sorter व्यू में देख सकते हैं। और जो व्हाट इज़ द नॉर्मल व्यू, स्लाइड sorter व्यू, रीडिंग व्यू, इसके बारे में अभी आगे हम डिस्कस करेंगे। ये पूरा एक स्लाइड व्यू के नाम से टॉपिक है। ओके, स्टेटस बार, दिस बार इज़ अ डिस्प्ले एट द बॉटम of the window. It shows the status of the program's current status. Menu option on the status bar selected by default. You can customize the status bar by right clicking it and select the option of your choice. ये विंडो के बॉटम में शो होता है, डिस्प्ले करता है स्टेटस ऑफ द प्रोग्राम करंट स्टेटस, जिस पे वर्क चला। ओके, रूलर्स अप, टॉप एंड बॉटम ऑब्जेक्ट को, ruler are vertical and horizontal guide. You can use them to determine where you want to place an object. These are not visible by default, but they can be turned on when required from the shortcut menu of any side. Right click on the slide. रूलर से आप जो टेस्ट होता है उसे हम इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। ओके, placeholder, it hold the object in your slide. You can use a placeholder to hold text, pictures and chart. And as is slide, what do you mean by slide? It is an individual page in a presentation where you can put picture, text, table, and a presentation consists of a number of slides. This is very important. इट इज़ इंडिविजुअल पेज इन ए प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में जो इंडिविजुअल पेजेस है, हम एक सिंपल पेज की बात कर रहे हैं जो कि हमने क्रिएट किया है, वो क्या है, एक स्लाइड है हमारी। स्लाइड के बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, फर्स्ट इज टाइटल एंड सेकंड इज सब टाइटल, थर्ड इज ड्राइंग ऑब्जेक्ट, फोर्थ इज क्लिप एंड आर्ट पिक्चर्स एंड
Fifth is footnote. These are the features of basic element of a slide. Okay, let us discuss the first title. टाइटल क्या होता है? इट इज़ अ हेडिंग विच डिस्क्राइब द कंटेंट ऑफ द स्लाइड के जो भी कंटेंट होते हैं, इस टाइप से जो हमारी स्लाइड बनी होती है, यहाँ पर जो हम टाइटल और टू टाइप्स के बॉक्सेस होते हैं, तो टाइटल हम जो लिखना चाह रहे हैं वो शो कर सकते हैं। सब टाइटल इसके बारे में जहाँ राइट करना चाह रहे हैं वो यहाँ पर राइट कर सकते हैं हम। इट इज़ अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्लाइड डाटा। सपोज दैट मैं कंप्यूटर के बारे में बताना चाह रहा हूँ, तो मेरा जो टॉपिक होगा वो टाइटल में मैं कंप्यूटर मेंशन करूँगा, कंप्यूटर, और उसके बारे में जो मुझे डिस्क्रिप्शन करना है वो सब टाइटल में लिखूंगा। अ ड्राइंग ऑब्जेक्ट, दिस आर शेप एंड अदर ड्राइंग ऑब्जेक्ट अवेलेबल ऑन द ड्राइंग ग्रुप विच कैन बी इंसर्ट ऑन ए स्लाइड एंड क्लिप आर्ट एंड पिक्चर्स। द गैलरी ऑफ पिक्चर्स कॉल्ड क्लिप आर्ट और पिक्चर्स ऑफ योर चॉइस विच एक्सप्लेन द कंटेंट मोर अट्रैक्टिवली। क्लिप आर्ट के थ्रू आप कोई भी पिक्चर्स एंटर कर सकते हो अपनी स्लाइड में। ओके, जो भी आपको पिक्चर्स क्लिप आर्ट में अवेलेबल है उसे सर्च कर सकते हैं, अपनी स्लाइड में उसे अप्लाई कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं सिंपली। अ फुटनोट, इट इंडिकेट द सोर्स ऑफ द स्लाइड डाटा और एनी अदर एक्सप्लेनेटरी टेक्स्ट। क्लियर है? ओके, तो इफ़ यू हैव a system at your home, that do your work as a practically and read this chapter. If you have any doubt, then ask me. Thanks to all.